Yes, बच्चों, once again your favorite Tirupati Panigrahi sir, your specialist in biology. I was talking yesterday all about your diabetes mellitus. Now we are going to discuss about diabetes insipidus. One thing I told you during teaching during giving information on diabetes mellitus, what are the common symptoms we generally get in both diabetes mellitus and insipidus? Yes, students. Yes. One is your polyuria, polydipsia. These are the two common symptoms. Okay. So I was as I have discussed you in the last class all about diabetes mellitus. Now we are going to discuss about diabetes insipidus. If you remember, what are the common symptoms we find both in insipidus and mellitus? Okay, yes guys, yes students. One is your polyuria, another one is your polydipsia. Now what is polyuria? Excessive urination. And what is polydipsia? Excessive thrust. These are the two common symptoms we will find both in insipidus and mellitus. Rest, what are the differences? As I already told you, diabetes mellitus affected organ is your pancreas, and whereas your diabetes insipidus affected organ is your what you call posterior pituitary gland, and up to some extent hypothalamus also. Okay, so we will consider posterior pituitary gland. Okay, so these are the two affected organ, and symptoms common I told you. What are the other symptoms differences? See, in case of polyuria of diabetes mellitus, you will find urine concentrated with glucose. That's why glycosuria. Okay, tasty urine. Whereas in case of insipidus, we will not find glucose in the urine. We will find more water content. The volume of water content is more. That's why it is called tasteless urine. Okay, but in both condition common is what? Polyuria means maximum or frequent urination. Polyuria का मतलब क्या है? Frequent urination. लेकिन इस यूरिन में मेलाइटस में शुगर होता है, इसीलिए ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं. इसमें ज़्यादा पानी होता है, इसलिए इसको सिंपल पॉलीयूरिया बोलते हैं. इसमें ग्लूकोज नहीं होता है, इसीलिए इसको टेस्टलेस यूरिन बोलते हैं. So this is the basic differences, symptoms differences, affected organ differences, and similarities I already told you. We have discussed deep about mellitus. Now we will going to discuss about insipidus. Okay. Now what is diabetes insipidus? Okay, this is also one of the lifestyle modification disease, but not that much affected like mellitus. Okay, you will find every 5 or 6 out of 10 Indians now suffering from diabetes. India has become the diabetes hub in case of mellitus, but insipidus is not likewise. Okay, so what are the problems, reasons how a patient suffer from insipidus? See, I already told you the affected organ is posterior pituitary gland. What it do? Secrete a hormone called ADH, anti-diuretic hormone, also called vasopressin. ओके, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, आल्सो कॉल्ड वासोप्रेसिन. वासोप्रेसिन का मतलब क्या है? यस बच्चों, वासो मतलब ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मतलब यस कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन. कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो भी डायमीटर होगा ना, ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो कम हो जाने को हम उसको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं. अगर ज्यादा हो जाएगा डायमीटर तो हम उसको डायलेशन बोलते हैं. वासोप्रेसिन क्या करता है? जनरली व्हाट इज द एट्रीब्यूट और फीचर ऑफ वासोप्रेसिन इज
to reduce the diameter of the blood vessel. Okay, we will discuss later on how it takes its role. Okay, now what did this do? This hormone ADH goes to your kidney, which part? Your specially your PCT, DCT and collecting tubules. These are the three regions of nephron. These are the three regions of nephron present inside the kidney. Nephron present inside the kidney. What is PCT? Proximal convoluted tubule. What is DCT? Distal convoluted tubule. And what is collecting tubules? The last one. Okay, the last part of the nephron. Okay, so all these three region of nephron, what they do reabsorb the extra water what is being filtered by the kidney. Listen, understand बच्चे लोग, समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ये चैप्टर का, लेकिन आपको समझना पड़ेगा नेफ्रॉन का प्राइमरीली काम क्या था। किडनी मतलब किडनी किस में बना रहता है? नेफ्रॉन में बना रहता है। थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में बना रहता है, जो कि उसका काम, किडनी का काम क्या है? यूरिन बनाना। किडनी का काम क्या है? यूरिन बनाना। यूरिन कैसे बनता है? 3 स्टेजेस में बनता है। 3 फेनोमेना उसमें इंक्लूड है। एक है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है सीक्रेशन। नाउ फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ग्लोमेरुलस बोल के एक पार्ट है नेफ्रॉन का, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, सब जो स्ट्रक्चर है उसका, वो काम करता है फिल्ट्रेशन का। दूसरा आपका पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स काम करता है आपका रीअब्जॉर्प्शन का, एंड आल्सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन सीक्रेशन आल्सो। ओके, सो दिस 3 मेथड दे अप्लाई नेफ्रॉन टू create the concentrated urine. Okay, now this ADH, what they do, they are secreted by this posterior pituitary gland. They, by the help of blood, they go to these 3 regions, and what they do, they reabsorb the water which are been excreted or which are being filtered by your glomerulus. Okay, glomerulus. Okay, ग्लोमेरुलस में जो ज्यादा पानी फिल्टर हो जाता है, ये सारे फिर से सिस्टम को रीअब्जॉर्ब करता है। सिस्टम मतलब बॉडी को फिर वापस ले आता है। तो पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूबुल में एडीएच जाके क्या करेगा? यस, इट रीअब्जॉर्ब्स वाटर टू दी अगेन बॉडी। ओके, ये एक काम करता है एडीएच। उसका दूसरा नाम क्या है? वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन क्या करता है? ग्लोमेरुलस में जाकर उसका डायमीटर कम कर देता है। कम करने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? अच्छी तरह फिल्ट्रेशन होता है। याद रखो, ये 2 काम करता है आपका एडीएच। अगर किसी कारणवश ये एडीएच सीक्रेशन कम हो जाएगा, कहां से? आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, देन दिस फंक्शन इज बीइंग हैम्पर्ड। तो इसमें क्या होगा? एडीएच अगर कम सीक्रेट होगा या बिल्कुल सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? पानी जो किडनी फिल्ट्रेट किया है वो वापस बॉडी को रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा? टॉयलेट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस। याद रखा क्या है? मैंने बताया, क्रिस में बताओ। ये एक डायबिटीज में तो बताया, इंसिपिडस का मतलब टेस्टलेस यूरिन। टेस्टलेस यूरिन, इंसिपिडस का मतलब टेस्टलेस यूरिन, मतलब यूरिन में ग्लूकोज कंसंट्रेशन नहीं है, खाली पानी है। मिलेटस में यूरिन में ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, इसीलिए वो टेस्टी यूरिन है। इतना याद रखो। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या करता है? हार्मोन एडीएच सीक्रेट करता है। एडीएच को हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये एडीएच क्या करता है? सीधा जाएगा किडनी में। किडनी में नेफ्रॉन स्ट्रक्चर रहता है, द यूनिट ऑफ किडनी। उसमें 3 रीजन है, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिव। ये तीनों जगह पे जाके एडीएच क्या करता है? पानी को फिर से सिस्टम को खींच लेता है। फिर से सिस्टम मतलब जो किडनी ज्यादा पानी यूज किया है
यूरिया एंड यूरिक एसिड को फिल्ट्रेट करने के लिए वो फिर वापस बॉडी के अंदर ले आना, रीअब्जॉर्प्शन, ये काम करता है एडीएच। ये 3 रीजन से। तो क्या होगा, पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जितना आपका यूरिनेशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता चुका है और दूसरे के प्रीवियस क्लासेस में, द जनरल वॉल्यूम ऑफ ईच यूरिनेशन इज 200 to 250 ml। 200 से 250 ml यूरिन होता है हमारे एक ही टॉयलेट के टाइम में। तो दिन भर अगर हम 5-6 बार जाते हैं टॉयलेट, तो कितना टॉयलेट होता है वॉल्यूम? ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर पर डे। अगर ये एडीएच है तो ऐसा होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? Yes, volume will increase to 4 or 5 liters or even 6 liters. So what happens that every half an hour, every 1 hour you will need to go for urination. So that is the problem. और दूसरा क्या करता है, वासोप्रेसिन उसका एट्रीब्यूट है, मतलब उसका कैरेक्टर ब्लड वेसल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये क्या करेगा, ग्लोमेरुलस पार्ट जहाँ पे यूरिया यूरिक एसिड को फिल्ट्रेट होता है, इधर ये क्या करेगा, प्रेस कर देगा। मतलब उसका कॉन्स्ट्रिक्शन करने से वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो अच्छी तरह फिल्ट्रेट हो पाएगा। इसको याद रखो। तो एडीएच 2 काम करता है, एक फिल्ट्रेशन भी बढ़ाता है, दूसरा वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है। इसीलिए ये अगर कम हो जाता है तो आपका सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस। दिस इज प्रेजेंट इन योर क्लास 11 चैप्टर कॉल्ड योर केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस भी 2 टाइप का है, जो कि नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। डायबिटीज इंसिपिडस फिर 2 टाइप का है। एक जनरल, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका, एडीएच सिक्रेशन रिड्यूस। एडीएच सिक्रेशन रिड्यूस अगर होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा। इसमें क्या पाया जाता है, कारण क्या पाया जाता है? द रीजन इज इसके लिए रीजन क्या होता है, हाइपोथैलेमस या और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होता है, इंजुरी हो जाता है, तब एडीएच सिक्रेशन कम हो जाता है। इसके वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि ये कॉमन है। और एक न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच सीक्रेट करता है, लेकिन किडनी उसको यूज नहीं कर पाता। किडनी कुड नॉट एबल टू यूज। इसमें क्या होता है, किडनी could not able to use ADH for water reabsorption and glomerulus blood pressure. Okay, so I think I have cleared all the essential information about diabetes insipidus. So friends, my students, we will come with another topic in the next session. So till that, good day. Okay.